Let us now start. I will take money and banking unit in macroeconomics. So I came to know that you are a bit worried about assertion reasoning based questions, case study based questions, but I will try to discuss these type of questions and will tell you the way how to answer such questions. First of all, dear, we all need to understand the basic fundamentals. ऐसे आ जाया करते फोटो सारे लोगों के. Yes, sir. Now, Yeah. okay. I will discuss some fundamentals, taking 10 minutes time in one chapter. Then you will yourself be capable of answering the questions like assertion based and reasoning based questions. Dear friends, listen one thing. First of all, I am talking about assertion and reasoning based questions. There will be two statements in the examination. One statement names assertion and the other statement is reasoning. And there will be four alternatives. There will be four options. Out of those four options, you are supposed to identify the correct one. So first of all, what you need to do, read those statements carefully. All the two statements, read twice, thrice, carefully. You may find three or four things. One possibility you will find, both the statements are true. One option. If you understand the subject, so then option B will be correct. If you find assertion A correct or false, then C will be correct answer. If you find reasoning statement correct and assertion statement wrong, then option D will be correct. There may be one more possibility. You again read two statements. You see whether the two are supplementary to each other. They are complementary to each other. One statement is given and the other statement you understand. For example, I may take up one example. Money supply refers to the total amount of money with the public at a particular point of time. This is given in statement 1. And statement 2 says money supply is a stock variable, money supply is a stock concept. So both the statement, the second statement supplements the previous one. So the answer will be A, because A को ये सप्लीमेंट कर रही है. Total money supply means, money supply denotes total quantity of money with the public at a particular point of time. When at a particular point of time is mentioned and second statement says money supply is a stock concept, we all know when a variable is measured at a point of time, it is a stock concept.
and when a variable is measured during period of time, it is a variable concept. So like this, I will be taking case studies also. First of all, I may discuss some concepts which you might be not knowing clearly, and if you know the concept clearly, then I will put a question and you will tell whether out of 4 options which one is correct. First of all, I am talking about money. What is money? There are certain concepts. There are certain concepts. Money can be defined anything which is commonly generally accepted as medium of exchange. This is money. ठीक है जी. और मनी भी एक होती है करेंसी. करेंसी का मतलब मनी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. When money is created by the government, when money is created by the monetary authority of a country, it is called currency. It is called currency. Of money, there are 2 forms of money: fiat money and legal tender. दोनों में डिफरेंस है. फिएट मनी अगर दे होता है तो इंडियन रुपी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. फिएट मनी जो है ना, that money which has no intrinsic value, उसकी intrinsic value कोई नहीं है, वो fiat money होता है. Fiat money is not legal tender money. और legal tender money क्या होता है? Money that has to be accepted legally in settlement of debts और as to act as medium of exchange. ये legal tender है. अब हमारे 500 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर लिखा हुआ है I promise to pay the bearer the sum of rupees. ये जो सेंटेंस है ये मनी को लीगल टेंडर बनाता है. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज, जो स्पेसिफाइड अमाउंट है जो नोट पर लिखी हुई है, वो इसको लीगल टेंडर बनाता है. अब मैं अगर आपको ये बता दूं, पहली स्टेटमेंट आ गई इंडियन रुपी इज फिएट मनी, और दूसरा मैं बताऊं इंडियन रुपीज लीगल टेंडर मनी, तो कौन सी ऑप्शन आपके लिए ठीक होगी? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ये. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. अगर मैं आपको ये कह दूं कि एनी मनी विच हैज टू बी एक्सेप्टेड लीगली बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लीगल टेंडर, और फिर मैं सेकंड बात बताता हूं, ए 500 रुपी नोट और 200 रुपी नोट इज लीगल टेंडर मनी, देन आंसर ए विल बी करेक्ट. Because statement B is a supplementary of statement A. तो आपको ये पता लगना चाहिए कि फिएट मनी क्या होता है और लीगल टेंडर क्या होता है. अगर एक स्टेटमेंट में ये आ जाए, मुझे बताना कि ये कौन सा आएगा आपको, ये इसमें कौन सी स्टेटमेंट आएगी, और आप यू कैन रेज योर हैंड्स और आप जो बताना चाहें मुझे बताना. इंडियन रुपी इज बोथ फिएट मनी एज वेल एज लीगल टेंडर मनी, पहली स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट, मनी क्रिएटेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इज हाई पावर्ड मनी. तो ये 2 स्टेटमेंट हैं. लिसन अगेन. पहली स्टेटमेंट है इंडियन रुपी इज बोथ फिएट एज वेल एज लीगल टेंडर मनी. सेकंड स्टेटमेंट है मनी क्रिएटेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री is called high powered money. तो you please let me know, raise your hand, कि आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि क्या आंसर आएगा चारों में से. आप अपना कैमरा ऑन करके और मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करें कि फंडामेंटल्स आपको जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप आंसर नहीं, इसका क्या आंसर बनना चाहिए आपके हिसाब से? Sir, both assertion and reason are true. Sir, option first. And correct explanation of A. ऑप्शन ए. तो फिर बेटे ऑप्शन ए सर. अच्छा, ओके. एंड हु इज सेइंग ऑप्शन बी? B, sir. Option A. Sir, option B. Option B. Option B is correct. Option B is correct. Because high powered money की डेफिनेशन आ जाएगी तो तुम्हें अलग लिखनी पड़ेगी. मनी क्रिएटेड बाय, अब आप लीगल टेंडर मनी क्रिएटेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी. तो फिएट मनी हाई पावर्ड मनी थोड़ा है.
इसलिए आप इसको थोड़ा कह सकते हो आप। Yes. तो अगर मैं ये कहता हूं कि आज मनी क्रिएटेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री, और फिर मैं कहता हूं कि 500 रुपी नोट इज हाई पावर्ड मनी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये बी स्टेटमेंट ए को सप्लीमेंट करती है। तो अब एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, आप उनमें से छांट के बताना। टोटल money supply refers to the amount of money, quantity of money with the public during a period of time, during a particular period of time. Second statement है supply of money supply is a stock concept. तो आपको A, B, C, D Both are true. Both are true. Option A. Option A. Option A. Option A A. option. Option B. एक मिनट सुनो ना, पहले मैंने स्टेटमेंट क्या दी है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। Sir, it's wrong. First statement is wrong. First wrong. Second is right. Second is right. Sir, option D. Option D. सेकंड स्टेटमेंट दी है कि मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट। Sir, option D. ऑप्शन डी Option D है, ड्यूरिंग अ पीरियड नहीं आता, वहां पॉइंट ऑफ टाइम आता है। The D option will be correct one. Right. D option. This Yes, is what sir. we need Thank to understand. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमें कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। देखो, एक तो मैंने मनी बताया, अच्छा अब एक मैं बताता हूं, इनमें से बताना आंसर क्या है। मनी कैन बी डिफाइंड एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एटीएम कार्ड्स आर क्रेडिट मनी, एटीएम कार्ड्स आर मनी। C, sir. Assertion is true. Option is C, sir. वन बाय वन करके C. Option C. Option is C, sir. ऑप्शन सी इज C. करेक्ट, क्योंकि ये जो है ना, ये कार्ड, ये तो मनी नहीं है। अब एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये तो इट इज ए मेथड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। सो हम क्या करना है, आपको दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ के फिर आपने उनको आंसर देना है। और एक ऑप्शन तो दी नहीं, और आपको मैं बता सकता हूँ, वो भी ऑप्शन दी हुई हो सकती है। बोथ स्टेटमेंट में भी फॉल्स। किसने बोला? अभी जाएगा, फिर जब टाइम होगा तो भी तो जाएंगे ना। वो भी हो सकती है एक ऑप्शन। अब ये भी ध्यान रखना कि भी यहाँ सिंपल बोर्ड में तो 4 स्टेटमेंट दे दी, वहां 5 आ जाए, 5वीं क्या आ जाए, बोथ आर फॉल्स। ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि भाई इससे भी ध्यान रखना। तो अब आप और देखेंगे, मैंने अच्छा फिर आपको ये बताता हूं कि बैंक मनी एक टर्म होती है, बैंक मनी। बैंक मनी जो है, जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंकों में, जो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना, उसको बैंक मनी कहते हैं। बैंक मनी रेफर टू डिमांड डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट कहता हूं, बैंक मनी इज ऑप्शनल। ये आपकी मर्जी है, आप उसको चेक से पेमेंट लो या ना लो। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ मैंने पहली स्टेटमेंट बताया कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल इन विद द कॉमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड बैंक मनी। सेकंड स्टेटमेंट मैंने बताया बैंक मनी इज ऑप्शनल। तो कौन सा क्या आंसर बनेगा ए बी सी में से? ये बनेगी सर। ए कैसे बनेगा? बैंक मनी, हाँ बैंक मनी इज ऑप्शनल, राइट, बिल्कुल ये बनेगा। और मैं ये कहता तो बैंक मनी इज लीगल टेंडर, मैं ये कहता, बदल दिया मैंने। अब पहली स्टेटमेंट तो एज इट इज है, दूसरी स्टेटमेंट में मैंने कह दिया बैंक मनी इज लीगल टेंडर, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल। देन स्टेटमेंट सी, देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आप ये देखो ना, मैंने ये बताया कि डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड बैंक मनी। और ये जो कागज के नोट हैं, पेपर नोट हैं, ये मैंडेटरी हैं, ये लीगल हैं। मनी, लीगल टेंडर मनी हैज टू बी एक्सेप्टेड लीगली इन सेटलमेंट ऑफ डेट। दे आर नॉट ऑप्शनल।
और बैंक मनी ऑप्शनल है, आप पेमेंट चेक से कर रहे हैं, अगला नहीं लेता पेमेंट। लेकिन अगर आप पेमेंट कैश कर रहे हैं या तो वो लेना पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार आपको ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन हमारे को सही बैठती है, और इसके लिए टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म्स को जानना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब ये बताइए, अब इन दो स्टेटमेंट में मैं आपको बताता हूं, आप करना। टाइम डिपॉजिट्स आर ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, डिमांड डिपॉजिट्स आर ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। Which of the two is correct? Time deposits are a part of money supply. Time Sir, deposits. C option C, sir. A is false and B is true. Our reasoning is the second statement is इसका true. मतलब ऑप्शन First डी is step- correct. No, sir. The first statement is wrong and second statement is correct. तो इसका मतलब तो आंसर डी आया ना हमारा ऑप्शन का। Yes, sir. Correct, sir. हमारा ऑप्शन डी आया ना मैम। Yes, ma'am. Yes, sir. तो ये आपने देखना है, अदल बदल के हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सॉरी प्लीज एक मिनट। अच्छा, अब आप और देखें, मनी। अच्छा, करेंसी में और मनी में मैं आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक मनी से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है। करेंसी इंक्लूड्स पेपर नोट्स ओनली। बैंक सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स बैंक डिमांड डिपॉजिट्स। इन करेंसी वी इंक्लूड ओनली पेपर नोट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, करेंसी का मतलब होता है पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स। Remember one thing, when we talk of currency, we mean currency includes both paper notes as well as coins. When I am saying currency includes only paper note, this is wrong. When I say demand deposit are a part of money supply, it is correct. It is correct. अच्छा, आप और बताना, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। All deposits in bank are a part of money supply. All deposits in bank are a part of money supply. Money supply is measured at a particular point of time. इन दोनों में से बताओ आंसर क्या करेगा, ABCD में से। पहला बताया मैंने, all deposits of people of public in banks are included in money supply. और दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या बताई थी आपको कि जो एक स्टेटमेंट तो ऑल डिपॉजिट नहीं इंक्लूड करते, हम केवल डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं। Option D is answer, sir. आंसर डी इज करेक्ट। तो आपको बातों में क्या बात निकल के आई कि अगर तो हमें आ रहा है कंसेप्ट क्लियर है, और आपको बच्चों में एक बात बताता हूं, हर चैप्टर में अगर आप एक पेज पर लेके बैठोगे, हर चैप्टर में 5 से 7-8 पॉइंट ही होते हैं जो फंडामेंटल हैं। अगर हमने उनको अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। आपके दोनों ए और बी ठीक हो तो बी आंसर आएगा, अगर ए ठीक है बी असर्शन गलत है तो सी आएगा, और रीजनिंग ठीक है असर्शन गलत है तो डी आएगा, और रीजनिंग ए को सप्लीमेंट करती है तो आंसर ए आएगा। आपने ये देखना है कि भाई इसी को सप्लीमेंट करती है या इसी को नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूं, जरा बताना मुझे। सप्लाई ऑफ मनी रेफर, एक ही चीज को 20 बार घुमा फिरा के हम कह सकते हैं। Supply of money refers to the total quantity of money with the public at a particular point of time. पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स।
पहली स्टेटमेंट क्या है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी with the available with the public at a particular point of time. ये पहली स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये ए है, इसका आंसर सही है। Answer A, sir. Option A. क्योंकि बी भी तो मनी सप्लाई को ही एक्सप्लेन करती है फर्दर, बी भी तो ए को ही सप्लीमेंट करती है ना। आपने ये तो देखना है पहले तो कि भाई कौन सी, पहले तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ो आप, जौन एक गलत लगती है एक सही लगती है तो कोई चक्कर ही नहीं है, 2 बार पढ़ लो। फिर तो या तो आंसर सी होगा या डी होगा, और दोनों सही लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगते तो आंसर बी होगा। अगर दोनों सही है और रीजनिंग उसको सप्लीमेंट करती है तो आंसर ए होगा। तो ये वे है आप लोगों को अटेंड करने का, और कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप एक बार उठा लें अपने चैप्टर और उसके फंडामेंटल एक बार देख लें आप। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल बिल्कुल सही है। अच्छा, अब 1 मिनट मैं आपको और ले रहा हूं। अब बैंकिंग में आइए आप। बैंकिंग में आपको क्रेडिट क्रिएशन आप लोगों ने क्लास में आपके टीचर ने अच्छे से समझाया है, और थ्योरी में होता तो ये सवाल हर साल आता। अब आप ये देखें कि क्रेडिट क्रिएशन में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। आप एक बार अंडरस्टैंड तो करो उनको। एक तो जो पैसा इनिशियल डिपॉजिट कराता है वो इन्वॉल्व होता है। यस, राइट रॉन्ग? Yes, sir. राइट। और एक जो लोन लेता है बोरोवर वो इन्वॉल्व होते हैं। राइट रॉन्ग? Right, sir. राइट। एक चेक बीच में आ गई इन दोनों के, वी मेक पेमेंट थ्रू चेक, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट खोलेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्रेडिट क्रिएशन के जो प्रोसेस में है 3 पार्टी इन्वॉल्व हुई। 1, The depositor. इनिशियल डिपॉजिटर्स, प्राइमरी डिपॉजिट। सेकंड, द बोरोवर्स। Sir, the bank. The bank. बैंक तो है ही, लेकिन एक चेक सिस्टम, मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं चेक सिस्टम, क्योंकि बैंक ये मानकर चलता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेड थ्रू बैंक्स एंड थ्रू चेक सिस्टम। ये तो यूं तो लेके एक ने लोन पास हुआ 10,000 रुपए लेकर के अपने घर तिजोरी में रख लिया, आगे वाले इकोनॉमी वाले क्या करेंगे? बाकी फिर लोग, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस तो रुक जाएगी। एक नदी का फ्लो है, आगे जा रहा है, और आपने काट के उसका फ्लो का अपने खेत में पानी ले आया, आगे वाला फ्लो कहां जाएगा? फिर तो खत्म है कहानी। तो क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे, इसके लिए वो सर्कुलेशन में पैसा बना रहना चाहिए। कोई आदमी उस पैसे को अपने पास लेकर नहीं बैठे। अगर कहीं भी पैसा रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन रुक जाएगी। तो बच्चों, मैं एक बात यहां करना चाहता हूं, तुमने अच्छे से, आपके टीचर ने बताया प्राइमरी डिपॉजिट क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने एंगल से बताना चाहूंगा। और फिर आपका एक भी सवाल गलत हो जाए तो मेरे पास आ जाना कि सर आपके बताए हुए से फार्मूले से हमारा ये सवाल गलत हो गया, तो मैं हर्जाना भरूंगा उसका। राइट? अब सुनो जरा, मेरी डेफिनेशन सुनो। ये सारी जो डेफिनेशन हैं हम किताबों में नहीं दे पाते। कारण है क्यों नहीं दे पाते किताबों में? किताब का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब प्राइमरी डिपॉजिट जरा सुनो क्या होते हैं, मैं बताना चाहता हूं। प्राइमरी डिपॉजिट को इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं। इनिशियल डिपॉजिट आप तो ये कहते होंगे जो लोगों ने पैसा जमा करा दिया। प्राइमरी डिपॉजिट को कहते हैं न्यू मनी दैट कम्स टू बैंक। नया पैसा जो बैंक में आता है ना उसको कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट। अब बच्चों, कभी आपने बैंक, आपके पेरेंट्स ने आपका अकाउंट खुलवा रखा हो, तो बैंकों में 3-4 तरह के अकाउंट खुलते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट खुलते हैं, मम्मी पापा से पूछ लेना आप कैसे खुलते हैं। और एक करंट अकाउंट खुलते हैं बिजनेस वाले।
परिवार वाले हाउस होल्ड लेडीज खोलती हैं सेविंग, सैलरीड पर्सन भी खोलते हैं सेविंग, उनकी सैलरी आती है उसमें, और एक जो लोग जिन्होंने अपना फ्यूचर प्लान करना है वो रेकरिंग डिपॉजिट भी खोल लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो, अब ये बताओ कि मान लीजिए ए गया एक बैंक में और उसने 10,000 रुपए सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के जमा करा दिए, इज इट इनिशियल डिपॉजिट? कोई तो कॉपरेट करो मेरे को, Yes, sir. इनिशियल डिपॉजिट है या नहीं है? Yes, sir. हाँ जी, यस सर, ठीक है, थैंक यू मैम। सेकंड, अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा मैम है या स्टूडेंट हैं, एनी हाउ, Ma'am, sir. हाँ, एनी हाउ मैं ये मानकर चलता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू माई लवली किड्स, है ना। इन बिटवीन आई सी सम फेसेस ऑफ टीचर्स ऑल्सो। माफ करना, मैं उनको इतना विद ड्यू रेस्पेक्ट ना बोल पाऊं, कारण ये है कि मैं सबको बच्चों की तरह ले रहा हूँ आज। Sure, sir. We are all younger to you, sir. नो मैम, सो नाइस। लेकिन क्या है कि मैं पूछ रहा था त्रिपाठी जी से कि आप मुझे ये बताओ कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ, कि मेरे से कभी गुस्ताखी ना हो जाए, कि मेरे समान जो टीचर्स हैं, मेरे बराबर जो टीचर्स हैं, मेरे कुलीग टीचर्स हैं, उनसे मैं बच्चों की तरह ट्रीट ना कर जाऊं और फिर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनो मेरी बात जरा, मैं इनिशियल डिपॉजिट की डेफिनेशन बताता हूं और ये तुम्हें डेफिनेशन अगर आ गई और फिर मैं प्राइमरी डिपॉजिट की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर देखना आप क्रेडिट क्रिएशन पर सवाल करूंगा मैं, आप उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब एक आदमी गया बैंक में अकाउंट खोल दिया, आपने कहा वो इनिशियल डिपॉजिट है। मैं गया, मैंने 10,000 की एफडी खोल दी, बताओ ये इनिशियल डिपॉजिट है या नहीं है? मैंने नहीं सेविंग खोला, मैंने तो एफडी करा दी 10,000 की। No, sir. No, sir. आप मुझे बताओ पहले तो प्लीज, आप रेज करके मुझे बताओ, ये इज इट इनिशियल डिपॉजिट? No, sir. नो सर कौन है? एक बार जरा अपना कैमरा ऑन करो और मुझे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Fixed sir. deposit is not Yes, an initial sir. deposit, sir. Yes, sir. है क्योंकि Yes. इनिशियल डिपॉजिट इसलिए है क्योंकि ये पैसे तो हम आप नहीं बेटे, है। मैंने ये जो बताया है कि मैंने तो एफडी करा दी और आपकी मम्मी ने करा दी सेविंग में पैसा, Saving, sir. तो दोनों इनिशियल हैं, एक इनिशियल है, क्या है ये सर रफड़ा? दोनों इनिशियल है। दोनों initial। सर दोनों इनिशियल इनिशियल हैं जी। सर दोनों क्योंकि initial हैं। बहुत फर्स्ट टाइम किया है। और एक बिजनेसमैन गया, उसने करंट अकाउंट खोल दिया, उसने 1 लाख रुपया जमा करा दिया, वो भी इनिशियल है। वो भी इनिशियल नहीं है। है, वो नहीं है, अच्छा बेटे, उसको एक बात सर्कुलेशन सुनोगे में नहीं रखते सर वो इनिशियल नहीं है। सर, वो अरे, नहीं है। एक बार ये अपना कैमरा ऑन करके नहीं वाली बोलेगी मेरे को, जरा कैमरा ऑन करके बताओ बेटे एक बार जरा क्या पोजीशन है, कौन कह रहा है नहीं है, और घबराओ मत आप, मैं आपका किसी का भाई बड़ा हूं, किसी का अंकल हूं, और मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, जो नहीं कह रहा है मुझे बताओ तो एक बार। यस सर, नहीं है, कैसे बेटे बताओ? क्योंकि उसको हम सर्कुलेशन में नहीं देते, दोबारा फर्दर उसमें नहीं करते करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट इसलिए- को क्यों? करंट अकाउंट को तो बैंक ने करना है, आपने थोड़ा करना है। मैंने जो इनिशियल डिपॉजिट की डेफिनेशन दी थी कि एनी मनी दैट न्यू मनी दैट कम्स टू बैंक, वो इनिशियल मनी है, इनिशियल डिपॉजिट है। उस डेफिनेशन में ये करंट अकाउंट का पैसा आता है या नहीं आता? यस सर। फिर बेटे सर आता है। फिर आता है तो आप बैंक के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? बैंक क्या करेगा उसका? सर फिक्स्ड डिपॉजिट्स इनिशियल डिपॉजिट्स नहीं होते ना। अरे मेरे बच्चे, अभी आप सर सभी कह सारे रहे थे, इनिशियल डिपॉजिट होंगे। अभी यही तो मैं कह रहा था। अगर आपको डर इसलिए तो लगता है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट अभी क्लियर से नहीं पता, आप मेरी बात सुनो पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियल डिपॉजिट होता है नया मनी, चाहे वो एफडी के रूप में आए, चाहे वो सेविंग के रूप में आए, चाहे वो करंट अकाउंट के रूप में आए, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में आए। जो बैंक में नया मनी आता है वो इनिशियल डिपॉजिट है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं, इनिशियल डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। जो आपने सेविंग में पैसा डाला, करंट अकाउंट में पैसा डाला, वो तो डिमांड डिपॉजिट है, चेक दे देगा बैंक तुरंत आपको। और जो आपने एफडी दी है, एफडी 10,000 की कराई है, उसका चेक बुक नहीं होगा, वो भी इनिशियल है, लेकिन वो टर्म डिपॉजिट है। कंपनी का भी
company आप मेरी can a बात company बताओ, become a partner? आप मेरे को मना कर देना कि Company जेपी गोयल साहब आप गलत पढ़ा रहे हो, आपकी बात से हम सहमत नहीं है। आप मुझे बताओ कि मैंने ये बताया कि पहले तो एक एक बात की यहाँ भरवा रहा हूँ। पहले तो मैंने बताया कि न्यू मनी दैट कम्स टू बैंक इज इनिशियल डिपॉजिट, राइट रॉन्ग? Right, sir. Right, sir. ये किसी भी रूप में आए यार, तुम ठेकेदार क्यों बन रहे हो सारा? ये किसी भी रूप में आए, सीएडी में आए, सेविंग में आए, एफडीआर में आए, आप इस बात को क्यों ले रहे हो? ये कहाँ गए आप? ऐसा बैंक जो एफडीआर करेगा वो लोन नहीं देगा क्या उस पर? अपना पैसा थोड़ा रखेगा बैंक उसको। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल डिपॉजिट जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा सेविंग में जमा हुआ है, जो पैसा करंट अकाउंट में जमा हुआ है, वो तो डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आ गया। और जो एफडीआर, कुछ लोगों ने एफडीआर करा दी, वो भी इनिशियल डिपॉजिट है, वो टर्म डिपॉजिट में आ गया। आप ये बताओ कि इनिशियल डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, राइट रॉन्ग? Right, sir. राइट। और देखो पहले मेरी बात सुनने से पहले आप सारे यूं कहने लगे ना ना ये तो बैंक क्या करेगा। अरे बैंक के ठेकेदार ना बनो आप। बैंक तो जो पैसा ले लिया वो लोन देगा, चाहे आपका सेविंग है, सेविंग का पैसा भी लोन देगा, और एफडी का भी पैसा लोन देगा, रेकरिंग का भी पैसा लोन देगा। बैंक ने तो लोन देना है आगे। मेरी बात, तो इसका मतलब है a deposit that is directly created by the customer, सुनो मेरी बात, a deposit that is directly created by the depositor is called primary deposit or initial deposit, right wrong? Right, sir. Right, Right, sir. sir. Right, sir. Right, sir. अब आपने जबरदस्ती यहाँ भरवाई है, मैंने आपसे, मैंने ये जबरदस्ती यहाँ भरवाई और मेरे को पसीना आ गया मैम इस कहाँ भरवाने में। और मैंने सोचा कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये तो ना मानते मेरी बात। मेरे बच्चों बात सुनो, जो बैंक के पास पैसा आ गया किसी भी रूप में आ गया वो इनिशियल डिपॉजिट है, पहली बात। और जो बैंक ने लोन देते समय अकाउंट खोल के पैसा दिया, when a deposit is created by bank, it is secondary deposit, right wrong? Right, sir. Right. बेटा कोई पैसा नहीं लग रहा, Right. आप राइट रॉन्ग कहने में कोई पैसा नहीं लग रहा। आप मुझे सुना दिया करो ताकि मुझे भी अच्छे से नींद आ जाएगी। प्लीज एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट करना। Any deposit created by bank in the process of making loan is called a सेकेंडरी डिपॉजिट। Secondary deposit. and any deposit created by the depositor customer is called a Primary deposit. Primary deposit. तो इसका मतलब क्या है? सच्ची सच्ची बताओगे? प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट के मीनिंग ठीक से नहीं पता था ना? No, sir. Yes, sir. आप ठीक No, कह रहे sir. हो। नहीं ठीक से नहीं पता था ना? नहीं पता। नहीं सर, इसीलिए कंफ्यूजन थी। आपके 100 नंबर आने से 95 नंबर पर अटक जाओगे आप। Yes, sir. Excuse me, sir. Sir, I have a question. May I ask? बोलो ना। Sir, question is that कि आपने बोला कि बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, जब वो लोन देने की कंडीशन में आएगा, अगर ऑलरेडी किसी का बैंक में अकाउंट है, क्या उसमें लोन ट्रांसफर नहीं होगा? मेरे बच्चे, ये लोन आपने बैंक तो ट्राई करने, बैंक ने दिया ना लोन आपको, आप बैंक हमें को लोन दे रहे हैं। एक मिनट, आप बैंक को ये तो नहीं कह सकते लोन दो भाई मुझे, नहीं तो ये गोली मार दूंगा, लोन दो मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। बैंक ने आपके कागज देखे, आपकी एलिजिबिलिटी देखी, तभी तो लोन जी। दिया होगा आपको। जी जी जी। तो एक मिनट और सुनना, द इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग सेकेंडरी डिपॉजिट गोज टू, दोनों में से एक छांटना है, कस्टमर बैंक। Bank. The initiative of creating primary deposit goes to bank customer. इसलिए मैं सारी बात कह रहा हूँ। ये बच्चा जो सवाल पूछ रहा था सेटिस्फाइड है मेरी बात से? सर एक्चुअली मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आपका और सवाल दोबारा बेटे, एक मैं बताऊं क्या है, इस वक्त 1,500 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर आप मैं इमीडिएटली एक बात पढ़ दूंगा तो वो 1,500 आदमियों का टाइम। इट्स ओके सर, इट्स ओके, मैं आपको पर्सनली भी कॉल करूंगा। मैं
वेट करूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की कुछ कर पा रहा हूँ सोसाइटी के लिए। और तो ये बात Definitely, है। sir. Yes, sir. You are doing. आपको मैं ये कहता हूँ, ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताना। इनिशियल डिपॉजिट्स आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। False, sir. No, sir. No, sir. No, sir. False है sir, false है. Initial deposits are also called primary deposits. Yes, sir. right Yes, है. sir. True. Primary deposits and initial deposits are one and the same thing. Yes, sir. Repeat, sir. Yes, sir. अच्छा, yes sir, very good. अच्छा, एक सवाल है, जो भी उत्तर दे देगा मैं उसको वर्बली शाबाशी दूंगा। Initial deposits are active deposits. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये सारे गलत बोल रहे हैं अब आप। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप एक बार प्लीज रिपीट समझ कर में दो। तो आएगा ना, आप ये सारे यस सर कहने लगे और जब नो सर। No, sir. Sir, आंसर please नो repeat सर the है। question, sir. Please repeat the और question, आप कह रहे sir. हो यस सर, बताओ कैसे बात चलेगी। ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है बैंक की तरफ से। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Sir, मैंने repeat the ये question. किया है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं ये एक्टिव डिपॉजिट्स हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एक्टिव डिपॉजिट्स। दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय बैंक्स, दे आर क्रिएटेड बाय कस्टमर्स, सो दे आर पैसिव डिपॉजिट। And deposits which are created by bank, they are active. Secondary deposits are active deposits. You got my point or not? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Which of the two deposits are passive? सर एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या हुआ इधर? एक्टिव ये है कि बैंक ने कुछ नहीं किया, आप गए 10,000 रुपए जमा करा दिए। और लोन लेने में तो बैंक ने सब कुछ किया, तक उसका देख मैंने इसको लोन देना है कि नहीं देना है, इसकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, तो बैंक उसमें लोन देने में बैंक का इनिशिएटिव जाता है, बैंक का रोल है। और इनिशियल डिपॉजिट में बैंक का कोई रोल नहीं, बैंक तो बैठा है। अब मेरे पास 10,000 रुपए, मेरे पड़ोस में 4 बैंक हैं, मैं किसी भी बैंक में जा सकता हूँ। सर इसका मतलब मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एक्टिव नहीं है बट इन्वेस्टमेंट एक्टिव है सर। राइट, ये बच्चा है, ये कौन से स्कूल का, क्या नाम है ये बताओ मेरे को। अग्रेशन बॉयज सर। है बेटा? अग्रेशन बॉयज। बहुत बढ़िया, ये उत्तर, ये तबीयत खुश होगी मेरी। जो बैंक इन्वेस्टमेंट करता है वो एक्टिव है। और आप चले गए, मेरे पास मेरे पड़ोस में 4 बैंक हैं, 10,000 रुपए में जमा करा दिया, तो कौन से में जाऊंगा, ये मेरी मर्जी है ना। बैंक का क्या रोल है इसमें? बैंक का रोल क्या है, आप चारों में जाओ, चारों आपको लोन दे देंगे, कौन सा 3 ना मना कर दिया, 1 ना हाँ भर ली, तो एक्टिव डिपॉजिट कौन सी हुई, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी एक्टिव हुई, प्राइमरी पैसिव हुई। सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी है ना, तो ये है। अच्छा ये बताइए आपको। अच्छा एक बात और बताना, सेकेंडरी प्राइमरी डिपॉजिट्स आर यूज्ड टू क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट्स, राइट रॉन्ग? Yes sir. Right. Yes, yes, sir. Right sir. Secondary deposits are used to create initial deposits. No, sir. No sir. No sir. Secondary deposits are also known as loan deposits. क्यों है ये तो? Yes, Yes sir. Yes sir. Yes sir. Right. True. Loan secondary deposits are also called as loan deposits. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, Deposits sir. that arises due to granting of loan by bank are called Secondary deposits. secondary deposits. Secondary deposits. Sir, can I ask one thing, sir? अब आपसे मैं सवाल कर सकता हूँ, जब तक ये Sir, can I फंडामेंटल ask one क्लियर thing, नहीं sir? होंगे, जब तक कैसे सवाल आप करेंगे, फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा सवाल असर्शन वाले ठीक हो जाए। आप तो यूं ही Sir, कहते then- रहोगे कि असर्शन वाले सवाल आने चाहिए, आएंगे कैसे? जब Sir, तक can I ask one thing, sir? हैं जी? यस, Can I ask one thing, sir? So, sir, what is derivative deposit? Secondary deposit? Yes. सेकेंडरी डिपॉजिट एक्टिव डिपॉजिट है। A derivative deposit also, sir? यस, डेरिवेटिव yes. उनके भाई नाम हो गए ना, सेकेंडरी डिपॉजिट sir. को डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कह लो, लोन डिपॉजिट भी कह लो, और इनको एक्टिव डिपॉजिट भी कह सकते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. ये बात है, इतने सारे नाम बता दिए मैंने, और फिर गलती हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकती कि आप अगर आपने कोई कंसेप्ट क्लियर होगी और आप उसको गलती कर दो, आप उसको समझ में आपको ना आए, ये हो ही नहीं सकता। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड।
अच्छा, अब मैं बताता हूँ, ए बी सी में से छांटना है, छांटोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. असर्शन और रीजनिंग में से छांटना है आपने, तो उनमें से आपने बताना है। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर। प्राइमरी डिपॉजिट्स refer to those deposits which are created by the banks. Secondary deposits are those deposits which arise in the process of making loans. Option first B is true. Option B, sir. Option. Answer Option, इनमें से कौन सा है? A is what are Option B. option? Option D, sir. A is correct. D correct है इसमें। सर डी। Option D. D Option D, correct sir. है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक बात और सुनो जरा, नई बात बता रहा हूँ आपको, शायद नहीं पता होगा। प्राइमरी डिपॉजिट जो है ना, वो किसी भी खाते में पैसा आ जाए ना बैंक में, वो प्राइम इनिशियल डिपॉजिट है। लेकिन जो सेकेंडरी डिपॉजिट है ना, वो कभी एफडी में नहीं जाएगा। सर आप मेरी सर की बात सुन पहले, फिर बात करेंगे। हाँ बता। सर इंटरप्शन सर, अगर सर सेविंग अकाउंट से सर एफडी अकाउंट में पैसा है तो प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? देखो जी, सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह कह रहे सीता कौन था। बताओ अब क्या बताऊं इसको, वही सवाल कर लिया ना मेरे से, मैंने आधा घंटा लगा लिया इस बात पर, और फिर वही सवाल घुमा फिरा के वही फिर आगे मेरे पास। भाई नहीं दे पाऊंगा उत्तर मैं ऐसे, मैंने तो सब कुछ बता दिया, मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं बताने के लिए। सुनो मेरी बात, अब जो नई बात बताने को जा रहा हूँ, या तो इसी बात का उत्तर करवा लो, या कोई नई लर्निंग ले, नई बात समझे। मुझे लगता है नई बात लेने में ज्यादा बढ़िया, ये बात तो मैं बता चुका हूँ। सुनो मेरी बात, प्लीज बी अटेंटिव, आई एम टॉकिंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इनिशियल डिपॉजिट है ना, वो किसी भी तरह के अकाउंट में आ सकता है पैसा, लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट कभी भी सभी तरह के अकाउंट में जा सकता है पैसा, लेकिन वो चेकेबल डिपॉजिट है। ये नहीं, सेकेंडरी डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट नहीं होगा, इनिशियल डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट हो सकता है। 3-4-5 बच्चे ज्वाइन है, मतलब सभी स्कूल के। Sir, lot of audio disturbance. Sir. Audio आप ये disturbance. बताओ कि अगर बैंक ने लोन दिया है, लोन देते समय एफडी अकाउंट खोल के देगा, डिमांड डिपॉजिट खोल के देगा उसको? डिमांड डिपॉजिट। चेकबुक देगा डिमांड डिपॉजिट। और कहेगा चेकबुक देगा और पेमेंट कर लो। तो इसका मतलब है लोन कभी एफडी के फॉर्म में नहीं जाएगा ना? यस सर। लोन एफडी के फॉर्म में जाएगा क्या? नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी डिपॉजिट can take place in all types of accounts, whereas secondary deposit take place in all types of account except fixed deposit account. Yes. बताओ Yes, इसका आंसर ए बी सी डी में क्या बनेगा? सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। रिपीट ये है, प्राइमरी डिपॉजिट कैन टेक प्लेस in different types of accounts such as saving account, current account and FD account. This is true, sir. एक मिनट, And second statement is not true. Second statement is not true. secondary deposit can also take place in various types of account. That is false. That's false. First statement is So, false. yeah, option C. Option Option C. आंसर हुआ Option C. Option C. C. होगी। Option C. First statement true. Second एक statement बच्चा false. बताएगा और मेरे को कोई नहीं सुनाई पड़ा कि इसका आंसर क्या होगा। C. Sir, option C. सी क्या होगा? ऑप्शन नहीं सी होगा। सर। ये होगा क्योंकि लोन डिपॉजिट तो कभी भी एफडी में जाए नहीं गया ना भाई। लोन क्यों लिया है? ब्याज खाने के लिए या पेमेंट करने के लिए? बोलो ना, लोन क्यों लिया है बैंक ने, बैंक से? पेमेंट देने के लिए। पेमेंट चेक से करेगा। और बताओ एफडी अकाउंट पर चेकबुक चलेगी? No sir. नहीं। No sir. तो इसका मतलब है डिमांड, लोन हमेशा डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करेगा ना। अब एक सवाल बताना, ट्रू एंड फॉल्स। Fixed deposits are created in the process of making loans.
Secondary False, deposit. false. Secondary Fixed deposit. deposits are False. created in the process of making Sir, loans. false है. Demand deposits False. are created in the process of making loans. Demand deposit. Yes, sir. False. True, sir. कौन सा ठीक है इनमें से? Fixed deposits, any kind of deposit can take place in the process of making loans. Wrong, sir. Only demand False. deposits are False. created in the process of making loans. Because they cannot. False. False. True. D ठीक है. D आंसर बनेगा इसका, क्योंकि Sir, lot of audio disturbance is there. Sir. डिमांड डिपॉजिट में ही लोन दिया जाएगा. Ma'am, all of us to need to mute the mic. पता नहीं क्या कह रहे हैं. एक बच्चे ने सारा जोर मार लिया, मैंने घूम फिर के वहीं आ गया. कोई डिस्टर्ब नहीं करना. क्या बात है? डिस्टर्ब कर रहा था. हाँ, नहीं मैंने सुनने की जरूरत पड़ती है ना. यस, ये हो गया. अच्छा, अब क्रेडिट कंट्रोल है और क्रेडिट क्रिएशन. सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट. False. कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट. ट्रू. ये तो हो गया समझ. अब आप ये बताओ कि फार्मूला क्या है इसका क्रेडिट क्रिएशन का, कि इनिशियल डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR. LRR जितना कम होगा, लोअर द लीगल रिजर्व रेशियो, greater will be the value of money multiplier. Right, wrong? Yes, right, sir. Right, sir. Lower the value of LRR, greater will be the value of money multiplier. True. Right. अच्छा, अब एक और बताओ, मनी मल्टीप्लायर का साइज जितना बड़ा होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा. True. मनी मल्टीप्लायर का जितना साइज ज्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा. True. Yes, sir. True. अच्छा, अब स्टेटमेंट छांटना. LRR नहीं, मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR. वन स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग मी? True. Money multiplier is inversely related to LRR. दूसरा, credit creation is inversely related to LRR. Yes, sir. Yes, sir. This is true. आप दोबारा सुनो. मनी मल्टीप्लायर में क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR. पहले बताओ ये राइट रॉन्ग? Money multiplier. Right. Inversely related to money multiplier is inversely related to LRR, and credit creation is directly related to, इनमें से छांट के बताना कौन सा, LRR और money multiplier. Credit creation is directly related to, अब दो वर्ड दे रहा हूं, छांट के बताओ इनमें से, LRR और money multiplier. नहीं, ट्रू तो जब कहोगे ना, मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ. So higher the multiplier. मैं ये कह रहा हूँ, लिसन, पहली स्टेटमेंट, मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR. राइट, रॉन्ग? LRR जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा. This is true. This is true. This is और true. मनी मल्टीप्लायर जितना ज्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा. मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है ज्यादा होगा. और इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, क्रेडिट क्रिएशन 5000. Yes. मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 है, इनिशियल डिपॉजिट सेम रहता है 5000, तो क्रेडिट क्रिएशन 10000. Yes. राइट, रॉन्ग? अच्छा, अब सुन के जरा बताना मुझे. मनी मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू LRR, क्रेडिट क्रिएशन इज indirectly related to money multiplier. Credit creation is indirectly related to money multiplier. इनमें आंसर ABCD में क्या आएगा? दोबारा सुनो. Money multiplier is inversely related to LRR. पहली स्टेटमेंट. पहले देखो ये राइट है रॉन्ग है, पहले तो इस पे टिक कर लो आप, राइट रॉन्ग. राइट है. सेकंड है, क्रेडिट क्रिएशन इज inversely related to
is inversely related to money multiplier. सर सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग Yeah. है, फर्स्ट करेक्ट Yeah. है। ये आंसर आएगा सर। या ये जो सारी बातें है ना, आप एक बार, अभी टाइम बहुत है आप लोगों के पास, आप क्या करो, आप हर चैप्टर निकालो और उसके फंडामेंटल तैयार करो, और फंडामेंटल तैयार एक बार हो जाएंगे, फिर कोई उठाओ, और कोई भी किताब ना उठाना। आधे से ज्यादा मार्केट में किताब ऐसी अवेलेबल हो रही हैं जो सवाल ही गलत फ्रेम हो रहे हैं, और हम लोग, हमारी क्या मिस्टेक है, हम जो भी प्रिंटेड मटेरियल है उसको सही मान लेते हैं और उसी में से गलत में से सही निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप एक बात बताओ, जब जिसमें से दही में से बटर निकाल ली हो, फिर दोबारा बटर निकलेगी क्या उसमें से? नहीं सर नहीं। कुछ लिटरेचर मार्केट में ऐसा अवेलेबल है जो रॉन्गली फ्रेम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो प्रिंटेड हैं, हम उनमें से एक छांटते हैं। आप उनको अपने टीचर के पास ले जाते हो, टीचर आपस में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाते हैं और उन्हीं में से छांटने की कोशिश करते हो, और यूं नहीं कहते भाई ये सवाल गलत फ्रेम हो रहा है। ये तो कह सकते हैं आप अपने बच्चों को। सर इन दी एंड ना आप एक अच्छी सी बुक सजेस्ट करिए टर्म 1 के लिए सर, बिकॉज ये मैं पहले एक बार मेरा लेक्चर खत्म हो जाए, हाँ। और आप जरा एक बार सुनो मेरी बात। हाँ आप जी ये सर। बताओ कि हाँ जी। असर्शन बिना फंडामेंटल के क्लियर हुए के असर्शन रीजनिंग है पॉसिबल? नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल। अच्छा, नहीं आप possible। सुनो बात, मैं बहुत सारी चीजें ले बैठा हूं मैम, जो आप सुनने वाले बनो आप। अब इस पे क्रेडिट कंट्रोल पर आओ बात। क्रेडिट कंट्रोल में कौन करता है क्रेडिट कंट्रोल? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, बिल्कुल ठीक है, सही है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, इसके लिए 2 मेजर अपनाता है वो। सर नहीं, अरे नहीं प्लीज, मैं कर लूंगा सर, आप ऐसा ना प्लीज, ऐसा नहीं भाई, ये मेरी गुस्ताखी है। देखो आप, यस सर। मैं आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, और जो टीचर बैठे होंगे तो शायद उनके भी काम आ सकती हैं, लेकिन मुझे ज्यादा, मैं बच्चों से ही बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है जो बिगनर टीचर्स हैं उनके भी काम आ जाएं। तो सबके आएंगे काम, हम जितना मर्जी पढ़ा लें, बट इन दी एंड वी आर टीचर्स एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। अरे सो नाइस मैम, ऐसा कहते हो तो आप, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है, आप मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं सर, नहीं 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 सर, आप मेरी बात, चलो वी शैल हाँ। यूज आवर टाइम प्रॉपर्ली। यस सर। अच्छा, एक तो मैडम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव। यस सर, यस सर। इन दोनों में फर्क क्या है? So one tries to control the money supply and other is tries to control the quality of credit in certain selected Quality as well as direction, ये sir. हुई ना, मतलब बहुत बढ़िया आंसर। और ये ऐसे बच्चे भी आंसर देंगे तो देंगे, जब टीचर बोल रहे हैं तो बच्चे भी देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? Yes sir. अच्छा, अब बैंक इसमें क्वांटिटेटिव की बात करता हूं, जहां मुझे लगता है कि आप लोगों को और हमें कुछ डिस्कशन की जरूरत है, और मैं फिर करूंगा मैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। पहले मेरे को ये डाउट है, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, हमें इनका ठीक से मतलब नहीं पता अभी। सर एक मिनट, मैं आपको सर एक चीज में इंटरप्ट कर रही हूँ कि सर जब हमारे सिलेबस में ये बोला जाता है कि भी ये इट्स ओनली द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू डू द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, बट आई स्टिल फील दैट मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। नहीं मैम, ये किसने बता दिया? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और ये सारा क्रेडिट कंट्रोल पर तो है सारा। बट सर दैट इज इन टर्म 2 ना मैम, ये नहीं है मैम। क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का फंक्शन है ना ये। क्या आप सेंट्रल बैंक का फंक्शन केवल नोट इशू मानते हैं? नो नो सर, आई एग्री बट लेट मी एक्सप्लेन माय पॉइंट। क्रेडिट कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। But sir, then how does CBSE say that this point has been deleted? And I'm sure most of the teachers would agree to this. They say it's one of the. Most of the teacher won't teach it. नहीं सर, मैंने पढ़ा दिया है बिकॉज एक्सेस डिमांड मैंने पढ़ा दिया, बट सर ये बड़ा मतलब देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो सीबीएसई कहता है ये डिलीटेड है। आप ये बताओ, जितने भी आपके सर्कल में टीचर्स हैं उनसे पूछो कि भाई तुम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो? पहले ये
नहीं सर पढ़ाते हैं, बट ठीक है वो सर, हम तो वो हमने पढ़ा दिया क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड में भी यूज होना है। नहीं मैम, हाँ जी, कॉमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है वो केवल ये नहीं है पैसा लेना है, उधार देना भी है और क्रेडिट क्रिएशन है। सेंट्रल बैंक का ये एक फंडामेंटल फंक्शन है, ये एक मेन फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। इसी कारण तो क्रेडिट कंट्रोल की आरबीआई की स्थापना हुई थी कि भाई तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई कंट्री करने की। मैं कैसे ये मान लूं कि भाई सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन नहीं है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का, केवल यही फंक्शन है ये, और हम जाके खाता थोड़ा खोल सकते हैं सेंट्रल बैंक में। नहीं सर मैं बिल्कुल मानती हूँ, बट वो फिर सीबीएसई क्यों लिखती है डिलीटेड टॉपिक्स में से ये डिलीटेड टॉपिक्स में लिखती देखो मैंने देखा नहीं है पहली बार, और मैं इस बात पर जब मुझे कोई पता नहीं तो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन सेंट्रल बैंक का फंक्शन दिया हुआ है और सेंट्रल बैंक का फंक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है सर, ठीक है, बस मैं तो ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है, हम इसको छोड़ने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। नहीं नहीं ठीक है सर, एक मिनट में जो बताना चाहता हूँ मैम वो जरा सुनो। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट, ये बताता हूँ आपको। हाँ जी सर। बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है, पता ही होगा सबको। हाँ जी, हाँ जी सर, सब बच्चे पता है। तो हमारा जो आरबीआई है वो रेपो रेट को नहीं, ये बैंक रेट को नहीं छेड़ता, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को छेड़ता है। ओके, राइट, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। बैंक रेट को वो चेंज नहीं करता ज्यादा। अच्छा, रेपो बैंक रेट भी मान लो आप, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है। हाँ, और बैंक जो कस्टमर को डील करता है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। अब एक मिनट में बताना चाहता हूँ, रेपो रेट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक lends money to member commercial bank, right, wrong? Yes sir. Reverse repo rate is the rate of interest at which central bank borrows funds from the commercial bank. Yes sir. Right, wrong? Yes sir. Reverse repo rate is the rate of interest at which central bank borrows money from the member commercial bank, or commercial bank can park their surplus funds with the central bank at repo rate or reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट पर वो रिवर्स रेपो रेट जो पैसा बैंक ने लिया है उधार बैंकों से, उस पर तो रिवर्स रेपो रेट एप्लीकेबल है, और जब बैंक देता है बैंकों को उस पर रेपो रेट एप्लीकेबल है। सही है ना? राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में से कौन सी, विच ऑफ द टू इज हायर और विच ऑफ द टू इज लोअर? रिवर्स रेपो रेट इज लोअर देन रेपो रेट। यस सर। कारण ये है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट पे हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स देन इट इज चार्जिंग ऑन लोन। लोन पर तो ले रहा है वो 4%, जब कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है, और कॉमर्शियल बैंक के पैसे पर वो दे दे 5%। क्या पॉसिबल है ये? नो सर। अरे बात सुनो मेरी बात, तो आप मेरी बात को नहीं, रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूं मैं। और रेपो रेट का मतलब है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक ब्याज पर पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को। मान लीजिए वो 4% है, और बैंक अगर जमा कराते हैं अपना फालतू पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास, तो मुझे वो बताओ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। राइट मैम, क्या होगी? कम होगी, कम होगी सर। कम सर, एट प्रेजेंट 3.35 है। लिसन प्लीज, रेंट मैं ये सवाल कह दूं, रिवर्स रेपो रेट इज लोअर देन रेपो रेट, राइट रॉन्ग? राइट सर, ये राइट है। और मैं सेकंड लाइन में ये कह देता हूं, सेंट्रल बैंक कैन नॉट पे हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अगर कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट कराते हैं उस पर हायर इंटरेस्ट नहीं दे सकता, देन इट चार्जेस फ्रॉम एडवांस। जो लोन देता है उसकी तुलना में वो डिपॉजिट जो इसके पास होते हैं उस पर ज्यादा लोन नहीं देता। तो अब ये नहीं करते हम ये तो कर लेते हैं
कि भाई अगर इन्फ्लेशन को रोकना है तो रेपो रेट बढ़ा दो, डिफ्लेशन को रोकना है तो रेपो रेट घटा दो, ये तो ठीक है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि एक तो हमारी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस वक्त, ये बच्चे जान लें कि भी आ जाए भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, 4%. ये भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना जी। हमारी क्या है, बैंक रेट 4 है, रेपो रेट 4 है और रिवर्स रेपो रेट 3.5 है, ये है जी। और अब मैं सीआरआर की बात और एसएलआर की बात और कर रहा हूँ, जरा ये और ध्यान। पहले मुझे आप एक बार कर दोगे आवाज थोड़ी इसकी, ताकि आवाज आ जाए इनकी मेरे को, हाँ, लोगों की थोड़ी पता लग जाए ना मुझे। चलो ठीक है। अच्छा ये यस हेलो, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने 3 चीजें बताई हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये बताया है कि रिवर्स रेपो रेट इज लोअर देन रेपो रेट, राइट रॉन्ग? Right, True, sir. Right, True, sir. sir. क्योंकि रेपो रेट तो वो होती है जो सेंट्रल बैंक को ब्याज मिलता है बैंकों से उधार देने पर, Yes, sir. और रिवर्स रेपो रेट वो होती है जो सेंट्रल बैंक को ब्याज देना पड़ता है उनके जमा पर। हाँ जी। क्या कोई सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार देता है उससे ज्यादा ब्याज दे सकता है बैंकों की जमाओं पर? No, sir. No, sir. No, sir. एक नो नहीं देगा। आवाज यस की आई थी, इसका मतलब है रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन Repo rate. Repo rate. रेपो रेट। Then और repo अगर ये आ जाए तो ये आ जाए, और सेकंड लाइन में ये आ जाए कि द सेंट्रल बैंक कैन नॉट पे हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देन इट इज चार्जिंग ऑन लोन, तो बताओ कौन सा आंसर बनेगा सही? A. option A. Option A option. सी कौन बता रहे हैं भाई? सी कहां से आया? बी का सप्लीमेंट्री है, बी ए का सप्लीमेंट्री है, Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए ये आंसर बनेगा। अच्छा जी, अब एक बात और सुनना मेरे को, सीआरआर और एसएलआर बता रहा हूं मैं। सीआरआर का मतलब है, एक तो बात क्या? बताऊं, चाहे वो एसएलआर है चाहे वो सीआरआर है, कैश डिपॉजिट का परसेंटेज होता है, वो लोन डिपॉजिट का नहीं होता। Yes, sir. पहली सुनो बात, ये बात कभी आप किताबों में लिखा होता है टोटल डिपॉजिट्स का ही होता है, कोई टोटल डिपॉजिट नहीं है। जो बैंकों में टाइम डिपॉजिट आई है और कैश डिपॉजिट आई है, कैश डिपॉजिट का फ्रैक्शन है वो। Yes. बैंकों ने लोन दिया है, लोन देने से पहले बैंकों के पास जो जमा राशि है ना, उसका फ्रैक्शन, उसका एक फ्रैक्शन सीआरआर होता है जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, और उसका एक फ्रैक्शन बैंकों को लिक्विड एसेट्स में, कैश में नहीं, कैश भी हो सकता है उसमें, लिक्विड एसेट में अपने पास रखना होता है। ये राइट और रॉन्ग? Right, sir. Right, sir. Right, sir. CRR refers to that percentage of total deposits, total cash deposits, yeah, total demand deposit and time deposit, which a commercial bank is required to keep with the central bank. और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, मिलता है? No, sir. No, sir. No, sir. इस पर कोई ब्याज नहीं देता सेंट्रल बैंक, देता है? नहीं देता। बस it is as a security. paid on CRR money by the central bank, right, wrong? No. No interest is paid by the central bank on CRR Right. money, Right. Right. right, wrong? Right, sir. Right, sir. It's No true. interest is paid when commercial Right. bank park their surplus fund with the RBI. False. False, sir. False. False. Right. No interest is paid by the central bank when commercial bank park their surplus fund with the central bank. True. Right, sir. False, sir. ये false है, उस पर मिलता है और इस पर नहीं मिलता। उस पे मिलता है। क्लियर है? तो अच्छा अब सुनो बात, और एक एसएलआर बताया मैंने आपको, एसएलआर इस वक्त 18% है। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. yes, sir. एसएलआर 18% है, रिवर्स रेपो रेट 3.5% है, बैंक रेट 4% है, रेपो रेट 4% है, सीआरआर 4% है।
और बैंक इसको 3 से लेके 15 तक चेंज कर सकता है, आरबीआई के एक्ट में ये बात। अच्छा अब सुनिए जरा, एसएलआर, एक बड़ा अंतर बता रहा हूँ एसएलआर में। यस सर। हम इनको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सबको क्रेडिट कंट्रोल है, लेकिन बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, सीआरआर का एम और एसएलआर का एम बिल्कुल डिफरेंट होता है। बेशक ये क्वांटिटेटिव मेजर हैं, लेकिन इनका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। अरे डिफरेंट है तभी वो 4% है, 18% है, कहाँ मेल है इनका आपस में? अगर कहीं मेल होता तो वो भी 18 की बजाय 4 रखवाता अपने पास। वो 18 इसलिए रखवाता है ताकि बैंक फेल ना हो, ताकि बैंकों की सॉल्वेंसी बनी रहे। जो डिपॉजिटर पैसा मांगने आए बैंक उनको प्रोवाइड करवा दे सकें। और इस सीआरआर का मतलब है टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। पर्पस डिफरेंट है दोनों का ना। तो वहां भी वो भी रखवाते 3-4%, 18 में रखवा रहे हैं। 18 इसलिए रखवा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास इकट्ठे कस्टमर आ जाएं तो तुम्हारे पास कुछ पल्ले होगा तो तुम उनकी डिमांड को यस बैंक की तरह ना बन जाए ना मामला सारा। यस सर राइट। As RBI is not dealing with इसलिए यानी एसएलआर, the purpose of SLR is to enable the commercial bank to fulfill the demand of customers whenever it arises. ठीक है जी, ये है। और एक और बात है, सीआरआर मनी पर कोई ब्याज नहीं मिलता। मिलता है? No, नो सर नहीं मिलता। एसएलआर पर बैंकों को कुछ आमदनी होती है। अब लिक्विड एसेट में पैसा डाल दिया, लिक्विड एसेट में पैसा डाल दिया तो जब तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती तो बैंकों को थोड़ी बहुत तो ब्याज की इनकम मिलेगी लिक्विड एसेट में। अरे कहीं मरे से मरा पैसा तुमने सेविंग में भी डाल दिया, ब्याज तो थोड़ा बहुत मिलेगा। yes, तो बताओ जरा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मनी इन्वेस्टेड अंडर एसएलआर, banks are able to earn some income through investment under SLR money, right? Wrong? Right. बोलो। राइट। Right. true. अच्छा, सेंट्रल बैंक won't pay any interest on CRR money. Right. ये बात है, बताओ आप ये होगी तो आपकी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप इनको सीआरआर को मानते हैं, आप कभी ये नहीं सोचा होगा अरे ये 18% है और ये 4% है, कहीं मेल नहीं आपस में। क्या इनका पर्पस तो वेरी नहीं करता हो? इनका पर्पस वेरी करता है। द पर्पस ऑफ सीआरआर इज टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड द पर्पस ऑफ सीआरआर एसएलआर वो तो है ही है, क्रेडिट कंट्रोल तो है ही है। उसके अलावा इसका मेन पर्पस ये है कि भाई बैंक फेल ना हो और बैंकों के पास ग्राहक आए तो बैंक पैसा उनको दे सके, लिक्विड डिसॉल्वेंसी ना हो और दे देंगे वो। यस सर। ओके ओके। यस सर। पहले क्लियर थी ये बात या नहीं थी? हाँ जी। Yes. यस सर क्लियर। Clear, sir. ये क्लियर हुई? Yes. Yes. आप मेरे Yes, सवालों clear का हो उत्तर गई। देना, असर्शन और रीजनिंग के सवालों का। और अब SLR करिए, अब कुछ आप भूल भी गए होंगे इस बीच और मेरे को याद है सारी, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और उनका आंसर। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, अभी एक बार आपने बोला भी है, मैं इसको रिपीट करूंगा कि एसएलआर से बैंक को इनकम होगी। आपने बोला जो पैसा बैंक ने अपने पास रखा हुआ है उसको इंटरेस्ट पे बैंक देगा, दैट मीन अब कहीं ना कहीं उस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कैसे सर? मेरे भाई वो कैश में नहीं रखता, वो लिक्विड एसेट में डालता है। कहीं 15 दिन की एफडी करा दी किसी बैंक में, शॉर्ट पीरियड के लिए 10 दिन के लिए करा दी, वो हाईली लिक्विड एसेट है, बैंक अपने पास कैश में नहीं रखता उसको। मनोज मन प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। सर कौन से पब्लिक सर ऐसा भी तो होता है कि कुछ बैंक, मेरे भाई आपको लिक्विड एसेट नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सर आई गेटिंग दैट। मनी possesses 100% liquidity. FDR possesses FDR are highly liquid assets. अगर एक बैंक के पास फालतू है, उसने पड़ोस के बैंक में जमा करा दिया पैसा, या पड़ोस वाला बैंक 2 दिन के लिए ले गया पैसा उधार, Yes, sir. तो फिर क्या करोगे? सर मुझे एक छोटा सा डाउट है सर। बोलो।
सर आपने बोला है कि एसएलआर बैंक को सॉल्वेंसी के तौर पे रखा जाता है, मतलब वो डिसॉल्वेंट ना हो जाए इसलिए रखा जाता है। तो सर फिर सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बनने की क्या जरूरत है? ये तो फिर आप ये बताओ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये कॉमन वे नहीं है। ये तो सारे रास्ते बंद हो लेते हैं जब पहुंचते हैं। आप हिस्ट्री उठा लो, कितने बैंक गए हैं आरबीआई के पास, बता लो, हमारे को फेल हो गए 100 साल में एक बार। ये कागजी कार्रवाई है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बैंकों ने अपने रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे सारे आपस में। Yes, sir. सर हाँ बोलो। SLR वापस समझा दो एक और बारी, मेरा कुछ नहीं। SLR टोटल सेविंग, टोटल डिमांड डिपॉजिट का और टाइम डिपॉजिट का वो परसेंटेज है जो बैंकों को लिक्विड एसेट में अपने पास रखना होता है। लिक्विड एसेट का मतलब मनी नहीं है, कोई सिक्योरिटी खरीद ली कहीं गवर्नमेंट की, Short term investment. Sir, golden bullion. पैसा जमा करा दिया एक हफ्ते के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ओवरनाइट के लिए जमा दे दिया। बैंक आपस में ले लेते हैं कॉल मनी। कॉल मनी जानते हो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कॉल मनी दे दिया किसी को, एक दूसरे को, दूसरे एक दिन के लिए बोरो कर लेते हैं। 1 से 14 दिन के लिए कॉल मनी होता है जी। कभी भी वो विदाउट नोटिस मांग लेता था आदमी, वो करना होता है। जिसको भी दिया है कॉल मनी, बैंक ने किसी को दे दिया तो वो 1 से 14 दिन के अंदर अंदर वापस करना होता है। Yes, sir. तो सर SLR में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट पे करता है? कौन? SLR में सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व ही नहीं होता। मेरे बच्चे कहाँ इन्वॉल्व होगा, आप समझ नहीं रहे बात। वो अपने पास रखता है, वो अपने पास रखता है, अगर लिक्विड सिक्योरिटी में रखता है, जरूरत पड़े तो भाई तुम तुरंत कैश कर लो उसको। हाँ जी हाँ जी, तुरंत कैश कर सर लो। कौन से ऐसे पब्लिक की बुक बेस्ट होगी टर्म ऑन के लिए? यार एक बात, बार बार एक बात कह रहे हो तुम, मेरे को पढ़ा बात नहीं करने दे रहे। बताऊंगा मैं, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। आप ये बताओ कि SLR की बात और CRR में जो डिफरेंस था, समझ आया आपको या नहीं? हाँ जी सर। यस अंडरस्टैंड। तो ये बातें अभी क्लियर हुई है या थोड़ा बहुत आपको आइडिया था किसी को? आइडिया था सर, आइडिया था सर, थोड़ा बहुत था ना? आइडिया पहले ही था। clear नहीं था तो अब हो जाएगा आइडिया। तो बेटे मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर जो लोग 90 पर अटक जाते हैं, 95 पर अटक जाते हैं और वो 100 में कन्वर्ट नहीं होते, वो ये छोटे छोटे सवाल 1-2 फंसा देता है पेपर सेटर, और जिसमें आप गड़बड़ी कर जाते हैं और जिसके कारण जो है ना जो नंबर हमारे वीक हो जाते हैं। May I ask one question? ठीक है जी। तो अब मैं 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट क्या, मेरा तो मुझे लगता है टाइम हो गया और मैं इतना ही बोल पाता हूँ। और अब आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझे बता सकते हैं और डिस्कस मैं कर सकता हूँ। और मैं केस स्टडीज के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा कि 5 मिनट के बाद रुक के, है ना, प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें आप। सिर्फ मैं 2-3 मिनट लूंगा, मैं अपने गले को आराम दे लूं और आई एम बैक टू यू, है ना, आई विल बी बैक टू यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। ओके सर। ओके सर। sir. In the meanwhile, I think we teachers could have a discussion. Good morning, everyone. Yes, good morning. Good morning, sir. I'm sure everyone is enjoying the session. Yeah. And, morning. if you have some query, you can put it on my personal chat, and we will take that queries. We need to give 5-minute break to the sir so that he can have something, water or something. Yeah, if you have some queries, you can ask. Sir, Yes. excuse me, sir. Yes, बताइए. Sir, सुनिए. due to networking problems, sir ने बहुत important definition बताई. Currency और legal tender में क्या difference होता है, sir? I would like to know. Okay, ठीक है. I am noting this question and I will sir को मैं बताऊंगा ये. मेरा रह गया सर, मैं सुन नहीं पाया. No या तो उसकी problem. recording वगैरह कुछ. Yeah, we will share the recording on the YouTube. Don't worry about that. Okay. Sir, one more question. Yes. Sir, one more question. Yes, Sir, ma'am. is legal reserve ratio same as cash reserve ratio? No. Legal reserve ratio is the combination of CRR and SLR. CRR and SLR. Yeah. Sir, I wanted to know the difference between actually legal tender and fiat money. Okay, सर ने ये चीज बताई थी अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सर को बोलूंगा, वो दोबारा रिपीट कर देंगे. हाँ. ठीक है.
Any अच्छा, other? sir hasn't touched open market operations. I just want Yeah, to know. They say buying and basically selling. you can understand the limitation of time and you can understand his at what age he is. Yes, उन्होंने हमें टाइम दे दिया, यही बहुत बड़ी बात यही है। बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ। Very तो true. you can go through his books. It is very easily written and बहुत लेमन का लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ेंगे। तो कौन सी बुक है इनकी बुक? द मिरेकल बुक बहुत अच्छी बुक है एंड एटलीस्ट आप टीचर्स के पास तो पक्का होना चाहिए दिस बुक, द मिरेकल बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आपके पास एक एडिशन पक्का होना चाहिए। इट इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, इट इज अवेलेबल ऑन अमेजन। तो आप इसको देखेंगे ना, मैं तो पिछले 5-7 सालों से इस बुक को मतलब हर बार जैसी आती है मैं परचेज करके रख लेता हूं। लास्ट ईयर इट वाज नॉट पब्लिश सर ये बुक मम्मी को बताया लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर तो इसके सैंपल भेजे गए थे टीचर्स के पास। हाँ, तो आप ये वो देख सकते हैं, आप पब्लिशर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सर ये बेस्ट पब्लिशर कौन है? पब्लिशर ट्रूमैन, ट्रू फ्रेंड्स पब्लिकेशन, ट्रू फ्रेंड्स पब्लिकेशन। या तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट, मैं जो हमारा ग्रुप बना है उसमें मैं नंबर शेयर कर दूंगा। Sir, can you please Sir, show I it have one a again? pretty good definition for the difference between fiat money and legal tender money. May I share? Ma'am, yes. Yeah, definitely, ma'am. Definitely, ma'am. Sir, according to me, that I have learned that fiat money is defined as the money which is under the order of the government to act as money. Like 500 rupees, 1000 rupees, all of these were fiat money. But now they are not under order, so they are not considered as legal tender money. Legal tender money is basically that can be used legally to make payments. So fiat money, like fiat money included 500 and 1000 rupee notes, but under legal tender money they are not used anymore. So other notes are considered as legal tender money. Okay, thank you very much, ma'am. We are going to continue. Okay, sir, yeah. Excuse me, sir. Yes, Sir, ma'am. money multiplier. Sir, एक क्वेश्चन है कि money multiplier is equal to 1 by CRR और LRR. LRR करो मैम। बस आप ये बताओ, एक बात बताऊं आपको, ये जो मनी मल्टीप्लायर है ना, क्रेडिट क्रिएशन कोई एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो CRR है जो रखते हैं उसके पास। और बैंक जो है ना LRR अपने पास जो LRR रखता है ना जी, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, इतना वो अपने पास LRR रखता है। और ये भी एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि डायरेक्टली हम एक चीज के साथ मल्टीप्लायर को नहीं जोड़ सकते इसकी वैल्यू को, क्योंकि अगर लोग पैसे बैंकों में जमा करने ना आएंगे ना लेने जाएंगे तो LRR क्या करेगा बताओ? यस सर। ना मैं जमा कराने जाता, ना कोई बैंक के पास लेना आता, तो LRR 10% है, बताओ मैं क्या करता रहूंगा LRR का? ये तो कुछ प्रेजम्पशन पर डिपेंड करता है कि भाई सब चीजें ठीक रही, लोगों की बैंकिंग हैबिट है, लोग 1/LRR। यस 1/LRR मान के चलो आप, बस दैट्स ऑल। LRR 10% है सर? है जी, LRR 10%? नहीं, कोई परसेंटेज नहीं है ये ऐसा। Sir, 10 will be the answer if it is 10%. If it is 10%, तो इसका मतलब है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 हो जाएगी। हाँ जी। अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 1000 डालोगे तो वो 10,000 हो जाएगा। आप सिंपल तरीके से समझो इस बात को, और मैं लिख के दे सकता हूँ LRR पर मल्टीप्लायर पर सवाल 100% होगा। सवाल ये हो नहीं सकता, इसके बिना सवाल कोई पेपर हेडर पूरा हो जाए। सर अगर हमें मनी मल्टीप्लायर निकालना है, कैलकुलेट करना है, और हमें CRR और SLR दोनों गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसा दिया नहीं होगा ना, वही तो कह रहा हूँ आपको। ये किसने बता दिया आपको? ऐसा अपने आप मनगढ़ंत सवाल बना लेते हो आप। अभी क्या बताया था मैंने? आप किसी और चीज को कुछ हो कह दोगे, मैं कैसे मान लूं ये हो जाएगा? SLR का तो कोई संबंध नहीं इससे। और है, अगर बैंक 18% की बजाय 50% कर दे अपने पास रखो, तो क्रेडिट क्रिएशन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये तो होगा।
और बॉस कभी कोई बात गलत नहीं, बॉस ने कोई रिक्वेस्ट भी कर ली तो वो भी ऑर्डर होता है। सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को अपील कर दी, भाई इन्फ्लेशन आ रहा है तुम लोन कम दो, तो वो भी ऑर्डर है। और एलआर क्या करेगा, वो कम देंगे वो लोन। ये एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये तो एक प्रोसेस को समझा दिया कि भाई बैंक अपने पास इतना रख लेता है और उसके भी आप पर अपनी बाई एक्सपीरियंस जानता है बैंक, भाई इतने % लोग निकलवाने आता है। हर रोजाना तो बैंकों के पास नया मनी नहीं आता। एलआरआर ना भी हो तो भी नए मनी से डिमांड पूरी कर देंगे लोगों की। न्यू मनी इज कॉन्स्टेंटली कमिंग टू बैंक्स एवरी डे। डू यू एग्री? यस सर। नया मनी हमेशा बैंकों में आता रहेगा। एलआरआर ना भी होता, नए मनी से कर देंगे पूरा वो। ये एक सिंपल तरीका है कि बैंक अगर अपने पास इतना % रखते हैं तो बाकी डिमांड पूरी कर देंगे। उनको ये पता है कि ऑन एन एवरेज इतने कस्टमर लेने के लिए आ जाते हैं, और ज्यादा ही आगे तो एसएलआर क्या काम आएगा वो लिक्विड एसेट में। फिर एक बच्चा कह रहा था ज्यादा ही नौबत आई तो आरबीआई बैठा है। आरबीआई पहुंचने से पहले तो अपने अड़ोसी पड़ोसी साथी बैंक के पास जाओ ना तुम। Example is the Yes Bank. Yes Bank shares were purchased by the State Bank of India, not by RBI. Problem, financial problem. Yes Bank. Here we faced a financial problem, na? आरबीआई ने भी 50,000 करोड़ दिए थे। आरबीआई ने भी 50,000 करोड़ दिए थे। आप मुझे अपना क्वेश्चन बताओ पहले, आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। Sir, can you please tell again legal tender money and fiat money difference? फिएट मनी ये होता है जिसकी इंटरनल वैल्यू कुछ ना हो, उसकी लीगल वैल्यू नहीं होती। आप यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। और लीगल, अब फिएट मनी का मतलब क्या होता है कि भाई वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, आपने इंट्रिंसिक पर जोर देना है। और लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ये है लीगल टेंडर। ओके सर। अच्छा, जो फिएट मनी है ना, वो लेने और देने वाले के इशू किसने किया है? हालांकि फिएट मनी भी बैंक इशू करता है, ये नहीं कि आप कर दोगे इसको मैं कर दूंगा। लेकिन फिएट मनी को जो हम एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के। So then what is fiduciary money? बेटे यही बैंक मनी तो फिड्यूसरी है। अच्छा, चेक है, फिड्यूसरी मनी यही तो होता है, चेक मनी, बैंक मनी जो विश्वास पर चले। तो फिर फिएट और फिड्यूशरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बेटे बताऊं क्या बात है। अब एक कागज का नोट है, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अरे एक मिनट, अगर कागज का नोट है उस पर आई प्रॉमिस टू पे लिख दिया तो वो लीगल टेंडर हो गया। वो लीगल टेंडर हो गया। और आई प्रॉमिस टू पे नहीं लिखा तो फिएट मनी हो गया। अच्छा ठीक है। और चेक लिख दिया तो वो फिड्यूसरी मनी हो गया। ओके ओके। अब आप मेरे को ये कह रहे हैं एक हो गया, आप मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो, आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है सर, लेट्स आई प्रॉमिस टू पे अगर है तो लीगल टेंडर। ठीक है। पेमेंट थ्रू चेक कर रहे हो फिड्यूशरी, तो फिड्यूसरी मनी, बैंक मनी। बैंक मनी नहीं कह सकते इसको, नहीं फिड्यूसरी भी नहीं। बैंक मनी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मनी है, चेक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये मनी नहीं है। ये तो उनको मनी को करने के लिए एक मीन्स है। ना एटीएम कार्ड, ना डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, ये कोई मनी नहीं है। ये मनी है आपका, बैंक मनी है, डिमांड डिपॉजिट। हाँ ठीक है। अगर आप डिमांड डिपॉजिट से पेमेंट कर रहे हैं। यस मैम। Promissory note and bill of exchange are included in the fiduciary money. कहाँ पहुंच गए आप बताओ? कॉमर्स ले आते हो आप बताओ। ट्रेजरी बिल कोई दूसरी चीज होती है। डिमांड डिपॉजिट अब आपके बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़े ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? सर मैं उसके ट्रेजरी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट तो लीगल टेंडर हो गया ना। सुनो मेरी बात, आप ये करोगे ना ऐसे तो आपकी तैयारी बहुत बड़ी हो रही है। आप थोड़ा सा मेरी बात सुनो। वो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज से हमें कोई लेना देना नहीं, ये नियर मनी में आते हैं। ट्रेजरी बिल हैं ये नियर मनी में आते हैं, ये मनी में नहीं आते और ना बैंक मनी में आते। ये
अब आपने बिजनेस स्टडी भी पढ़ रखी है, मैंने तो पढ़ नहीं रखी। तो ये बात हो रही है। और मैं कह रहा हूं भाई डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट के थ्रू पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे आप? थ्रू चेक। चेक करोगे, चेक मनी नहीं है, डिमांड डिपॉजिट मनी है। अगर आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, एक पैसा बैंक में नहीं है, तो चेक काट दोगे आप? नो सर। फिर चेक मनी हुआ तो चेक काट दो आप, ना है डिमांड डिपॉजिट। तो मुझे बताओ डिमांड डिपॉजिट मनी है चेक मनी है? डिमांड डिपॉजिट। ये बात है। और कोई भी किसी को दिक्कत है तो जो नए टीचर अगर बैठे हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पर अपने एड्रेस और अपने भेज सकते हैं। मैं आपको किताब भेजने की कोशिश करूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। आप मेरे जो है ना नंबर होगा शायद आप लोगों के पास। टीचर्स के लिए कह रहा हूँ, आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और क्या कहते हैं स्कूल एड्रेस और डेजिग्नेशन ये मेरे व्हाट्सएप पर कर देंगे तो मैं उन टीचर्स की हेल्प जरूर करूंगा किताब भिजवाने में। Those who are willing to get the book, they please send their name and address to me, है ना? आपका पर्सनल नंबर सर प्लीज। मेरा पर्सनल नंबर मैडम यही है जो 989109। मैम ये तो फिर ये सर 9981009। मैं पब्लिकली नहीं बता सकता जी नंबर, ये इन द सेंस कि 1500 जुड़े हुए हैं इसके साथ और मेरे पास कॉल इतनी आ जाएंगी मुश्किल हो जाएगा। तो है ना मैम? तो नंबर मेरा डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी हैं जो संचालक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, वो बता देंगे। बाकी मैं तो आपकी हेल्प ये कर दूंगा कि भाई आपका नाम फॉरवर्ड कर दूंगा और उन किताब भिजवा ही दूंगा आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं तो ये कर सकता हूँ मैम। और आप लोगों ने मेरे को सुना, सो नाइस। और कोई भी सर वेरी ग्रेट यू सर। सर क्या आपका नंबर मिल सकता है क्या सर? सर ने बोला ना कि वो पर्सनली नहीं शेयर करेंगे। मैं नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ऑनलाइन मेरे पास 1500 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा तो फिर उनमें बच्चे भी होंगे, फिर वो मिसयूज होगा मेरा नंबर और फिर मैम मेरे को दिक्कत होगी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सर जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय सिक्योरिटीज? अरे बात सुनो, ये तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट उनको बेचती है सिक्योरिटीज को। अच्छा, अब याद ये बताओ ना कि सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के कितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं। जैसे अब ऑयल बाउंड हैं, ऑयल बाउंड दिए थे, तेल की IOCL की तेल की पेमेंट की थी गवर्नमेंट ने, तो पेमेंट कैश ना करके बॉन्ड दे दिए उनको जारी। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। अब कॉमर्स के टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में मेरे से पूछ रहे हो तो ये तो एक अजीब सी बात लगी। लेकिन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का मतलब है कि गवर्नमेंट ने 10,000 की सिक्योरिटी बेच दी तो गवर्नमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद उतने ब्याज रुपए देगी आपको। आपने गवर्नमेंट को लोन दे दिया आपने एक तरह से। हाँ ठीक है। आपने गवर्नमेंट को लोन दे दिया एक फिक्स पीरियड के लिए। एक नंबर मैं देता हूँ आपको, मेरा नहीं है लेकिन एक पब्लिशर का नंबर है। वर्कशॉप चल रही है अभी भी। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको कांटेक्ट करें और पब्लिशर बता देगा। और मेरा पर्सनल नंबर जो है ना डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी देंगे, है ना? ये मैं दे रहा हूँ 9910 हाँ जी 44 यस सर 9282। इस नंबर से इफ एट ऑल कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ना, तो उनके लिए भी इंटरेस्टेड है और टीचर डायरेक्टली बात करेगा तो वो पब्लिशर ऑनर करेगा, टीचर को क्यों नहीं करेगा बताओ? ठीक है। सर बुक का नाम क्या है, पब्लिशर को क्या बोलना है? ये बुक का नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी ने अभी बताया था। ये किताब है जो दिखाई दे रही है, ये मिरेकल दिखाई पड़ी है मैडम? ये ना सर, हाँ जी थोड़ा सा ऊपर, द मिरेकल बुक, द मिरेकल बुक रिटन बाय प्रोफेसर JP गोयल। ठीक है ठीक है मैम। और कोई भी है ना मैम, तो आई विल बी ऑल रेडी। और मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ। और पर्टिकुलरली मेरे को तो कुछ नहीं है, वो तो मुझे जो लिखना है मैं लिख के रख लूंगी और वो तो कोई बात नहीं।
सर मैम प्लीज, हाँ जी सर। I respect all teachers, देखने I चली love ना। all children and I respect Dr. सुनील त्रिपाठी। उन्होंने ये मौका दिया और आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला मुझे, और so nice of you। नहीं, Excuse me, कोई sir. मतलब नहीं। Sir, Thank please you. recommend